Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you dear students? We hope so that you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and your study is going excellent. You all are enjoying online studies and taking the benefits from these online classes which are actually beneficial for your academic growth. With hope that you all will be successful because I really cared about the students' learning and their success. So inshallah, you will be successful in your life exams. Inshallah. So now we are starting our today's lecture. We are going to discuss the first year biology, botany 1, biodiversity and our today's lecture based on the chapter number 5, variety of life. Now in our today's lecture, we are going to learn about the topic virus. It means that our today's lecture is totally based on the topic virus. Dear students, a question is arise that what is virus? So viruses are the non-cellular obligate parasites that always have a protein coat and a nucleic acid core. Virus is considered as the living thing or as the non-living thing. If viruses are present in the air means outside the host body, so they considered as the non-living thing because they are showing the non-living thing properties. They are crystalline in their nature. They having the genetic material which is inactive in their form. They can't respire. Right students? If they are present in the host body, so they considered as the living thing. Okay dear students? Now virus, the word virus is derived from the Latin word venom. Which word? Venom. Venom meaning poison. Right students? Virus कहाँ से derive हुआ है? It is derived from the Latin word venom which means the poisons. It was generally because that these viruses or the poisons were carried in the air and could cause the many unexplained diseases. ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? लैटिन लैंग्वेज में इसको नाम पॉइजन का दिया गया और क्या वर्ड यूज किया गया? विनोम का वर्ड इसके लिए यूज किया गया. In the history, a German scientist Adolf Meyer 1838 discovered that he could transmitted the disease from the plant to plant by rubbing sap extracted from the diseased leaves. Right students? Because of the viral infection, because viruses are the obligate parasite, they are infectious, they cause the disease because they act as the obligate parasites. They have to need the host body to become active. After the Adolf Meyer, Ivanovsky, Russian biologist, concluded that virus could be transmitted from an infected organisms to the healthy organisms of the same kind. Right students? The Russian scientists discovered the virus from the tobacco plant where this virus caused the tobacco mosaic disease. Right students? कौन सी disease cause करता था? Tobacco mosaic disease. TMV virus causing the tobacco mosaic disease in the tobacco plant. Now dear students, what we are concluded that what is virus? So virus an infectious obligate intracellular parasite comprising the genetic material DNA or RNA surrounded by a protein coat or a membrane. That is actually the virus. Virus is acellular organisms. वायरस कैसा होता है? acellular organisms होता है क्योंकि इसकी बॉडी को हम सेलुलर लाइक नहीं कह सकते. इसके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कवर्ड होता है, सराउंड करता है बाय द प्रोटीन कैप्सिड. प्रोटीन कैप्सिड कैसे बना होता है? ये बना होता है छोटे छोटे सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड दीज सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड दी capsomers. Capsomers are the subunits of the protein which are actually compose the protein core और वायरस के सराउंडिंग पर ये प्रोटीन कोड बनाने में हेल्प आउट करता है. नाउ स्टूडेंट्स, a virus is the biological entity that can only reproduce within the host cell.
Anatomically, viruses possess the nucleic acid, DNA or the RNA, which are encased within the protective covering, which is actually the protein coat. Viruses are very minute or the non-cellular bodies considered between the living and the non-living organisms. They are so small that they can only be seen with the electron microscope. Viruses are very minute non-cellular bodies considered between the living thing and the non-living thing. We can say that these are the living organisms which are placed on the borderline between the living thing and the non-living thing. We can also use the term that viruses are the linked between the living thing and the non-living thing. As we discussed that the word virus is derived from the Latin word venom, meaning the poison. A Russian biologist Ivanovsky 1892 in the year 1892 discovered the virus from the infected leaves of the tobacco plant. In the year 1935, W.M. Stanley isolated the virus in the crystalline form from the infected leaves of the tobacco and observed them under the electron microscope. Is that clear to all of you? सबसे पहले वायरस को किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले वायरस को एडोल्फ मेयर ने डिस्कवर किया. देन उसके बाद लीफ ऑफ द टोबैको प्लांट एक्सट्रैक्ट किया था किसने? आइवानोस्को ने. देन W.M. स्टैनले ने उसको एक्सप्लेन किया. राइट स्टूडेंट्स? Now we have to discuss the characteristics of the viruses. So viruses are the non-cellular parasitic entities. यानी बहुत छोटी बॉडीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल साइज की हैं. और ये कैसी हैं? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि उनको हर कंडीशन पर होस्ट सेल चाहिए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए. और इनकी बॉडी कैसी होती है? नॉन सेल्यूलर होती है. उसके पास कोई सेल नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि कवर्ड करता है प्रोटीन कोड की मदद से कवर्ड हुआ होता है. इज दैट क्लियर? वायरसेस को हम बोथ लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन रखते हैं. अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल कवर्ड हुआ होता है. किससे? प्रोटीन से कवर्ड हुआ होता है. Right? When they enter the body of any living organism, they reproduce. They are like living organism, just like the living organisms. Right? ये replicate कर जाता है, इसका DNA, इसका RNA replicate कर जाता है और then they act as the living organism. They look like a non-living crystals when they are outside from the living organisms. अगर ये living organism के बाहर होते हैं तो ये कैसे act करते हैं? ये बिल्कुल non-living organism की तरह act करते हैं. अच्छा, इनके जो non-living properties हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. इसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये ए सेल्यूलर है, इनका कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होता. सेकेंड, दे डू नॉट रेस्पायर एंड एक्सक्रीट. ये ना ही तो रेस्पायर करते हैं और ना ही ये एक्सक्रीट करते हैं. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट. ये ना ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हम जब एक्ट करते हैं तो ना ही तो रेप्लिकेट करते हैं और ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं. दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन दियर फॉर्म. ये कैसे होते हैं? ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह होते हैं. सो दीज आर एक्चुअली द नो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस. नाउ व्हाट आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस? वायरसेस possess the DNA or the RNA. They having the ability to reproduce, to respire, to excrete. Right? They can be replicate. Right? So they have the ability to perform the function of the reproduction. They can cause the infection because they are the infectious obligate parasites. They can undergo the mutation and the genetic recombination. So these are the living characters of the viruses. The size of the virus in range 20 nanometer to 250 nanometer. They are very minute in size. They are smaller than the bacteria. ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं. They are electronic microscopic. इनको हम नेक्ट आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते और ये आम सिंपल कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते. इनको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की नीड होती है तब ये विजुअलाइज होते हैं.
Right, students? Viruses are either virulent, destroying the cell in which they occur, while temperate viruses become the integrated into their host genome and remain stable for the long period of the time. राइट ये बहुत टाइम तक इनकी लाइफ साइकिल रहती है, ये काफी टाइम तक होस्ट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पर अपने रेप्लिकेट्स फॉर्म कर सकते हैं, वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं और नंबर ऑफ वायरसेस में इंक्रीज कर सकते हैं. राइट नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस. वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Right? So the virus may be a small sphere like a golf ball, like a road shape, like a tadpole, polyhedral, tetrahedral in their shape. They mainly consist of the viral genome, capsid, envelopes and the tail fibers. राइट इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपली जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई और सेल ऑर्गेनील इनके पास नहीं होता, इनके पास कोई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनके पास साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ नहीं होता. ठीक है, इनके पास क्या होता है? दे ओनली कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. राइट, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कैप्सिड. प्रोटीन से बने हुए कैप्सिड से ये कवर्ड हुआ होता है, एनवेलप इस पर होता है और उसके टेल फाइबर्स होते हैं. सबसे पहले जीनोम, विच इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल. वायरल जीनोम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल और द सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए और आरएनए. या तो डीएनए मौजूद होगा या फिर आरएनए मौजूद होगा. नॉट बोथ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द वायरस एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं होता. ठीक है जी. प्रोटीन कैप्सिड, द प्रोटीन कोड इनक्लोज the viral genome is called the protein capsid. It may be different shape and mainly made up of the protein subunits that are called the capsomers. अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इसके जो प्रोटीन कोट होता है वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है. वो छोटे छोटे से सब यूनिट्स क्या कहलाते हैं? वो कैप्सोमर्स कहलाते हैं. राइट, वायरल एनवेलप. In the some viruses, accessory structure called the viral envelope are present that help them in the infecting their host. They are membrane that enclose the protein core. राइट, वायरल एनवेलप मौजूद होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प आउट करता है. Tail or the tail fibers. Many viruses possess the thread-like long tail and the tail fibers. These structure help in the infecting the host cell. राइट स्टूडेंट, जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी टेल फाइबर होस्ट सेल और होस्ट बॉडी के अंदर इन्वाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग बन जाती है और ये इजीली अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस. डेविड बाल्टीमोर इन द ईयर 1970 presented the model of the classification of the viruses. Viruses classified on the phenotypic characteristics, core content, chemical composition, capsid structure, size, shape, genome structure and modes of their replication. The scientist Baltimore classification is the most commonly used for the studying purpose. David Baltimore in the year 1970s proposed the system of the classification of the virus, for which he was awarded the Nobel Prize. Right students, classification of the virus is based on the presence of the nucleic acid. Sometimes viruses having the DNA or sometimes viruses having the RNA. When the virus is having the DNA as its genetic material, there are the two different types of the DNA virus. Single strand DNA virus or the double strand DNA virus. Right? We can represent it as ssDNA means single strand DNA or dsDNA means double strand DNA. Right students? RNA virus. The virus having the RNA as its genetic material, there are the two different types of the RNA virus. Double strand RNA virus or the single strand RNA virus. It is further classified into the positive sense, yani plus RNA, or the negative sense means minus RNA. Right? Now the students, classification of the viruses. An American biologist, David Baltimore, in the year 1970s proposed the classification. The Baltimore classification is the most commonly used for study of the viruses. Viruses can be classified on the basis of the phenotypic characteristics.
core content, chemical composition, capsid structure, size, shape, genome structure, and the mode of the replication. Classification of the virus is based on the different modes. First, we have to discuss the classification which based on the presence of the nucleic acid. Because viruses having the two different kinds of the nucleic acid, DNA and the RNA. Now there are the two different types of the viruses. Number one is the DNA virus, which having the DNA as a genetic material. Number two is the RNA virus, which having the RNA as the genetic material. Right? Now the DNA virus, the virus which having the DNA as a genetic material, there are the two possibilities. There are the two for the types of the DNA virus. Single strand DNA, right? ssDNA वायरस. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है पार्वो वायरस और पिकॉर्ना वायरसेस. राइट. सेकेंड है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस यानी dsDNA वायरस. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एडेनो वायरस और हर्पेस वायरस विच नॉर्मली कॉजेज द स्किन डिजीजेस. These viruses are the obligate parasites, so these viruses are able to cause the disease, causing the infection to the living host. Right, students? Now the RNA virus. There are the further two types of the RNA virus, and RNA virus is that virus which having the RNA as the genetic material. First type of the RNA virus is the double-stranded RNA virus, which is dsRNA virus, and second one is the single-stranded RNA virus. Now the single-stranded RNA virus having the two possibilities. It may be the positive RNA virus or it may be the negative RNA virus. Alright, students. So these RNA viruses causing the diseases in the human beings, in the animals, in the plants as well. Right. So which type of the diseases this RNA virus causes? This causes the polio viruses, hepatitis, rabies viruses, influenza. These all are the viruses which causes the diseases, influenza, rabies, hepatitis. Right? कौन से वायरस होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. Right, students? Okay. Now the other type of the classification which based on the structure or the symmetry of the viruses. Right, students? So there are the four possibilities. Some viruses are the complex viruses, जैसे pox viruses. Some are the radial symmetry viruses. राउंड सिमेट्री वो शो करते हैं, किसी भी एंगल से कट करें तो वो राउंड सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री वो शो करते हैं. फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियोफेज वायरसेस. Bacteriophage viruses are showing the radial symmetry because they are tetrahedral in their shape. Okay. Next type of the virus is the cubical icosahedral symmetry shaped viruses. They are normally the reovirus and the picorna viruses. Right. Next type of the virus which are in the round or the spiral shaped in their symmetry, or they may be the helical symmetry viruses. They are the example of the paramyxoviruses and the orthomyxoviruses. Is that clear? Okay. Now student, classification based on the host range. There are the three different types of the viruses which are classified on the basis of their host range. First one is the animal viruses, second one is the plant viruses, and third one is the bacteriophage viruses. Animal viruses are those viruses which having the ability to cause the disease in the animals. Right, students? Including the human beings. Right? And these viruses normally influenza virus, mumps virus, rabies virus, polio virus, herpes virus, etc. Plant viruses. Those viruses which are able to infect the plant body by invading the virus inside the plant cell. They are called the plant viruses. वो viruses जो के plant body के अंदर invade होकर disease cause करने की ability रखते हैं, infection cause करते हैं, क्या कहलाते हैं? Plant viruses कहलाते हैं. For example, tobacco mosaic virus, beet yellow virus, turnip yellow virus, cauliflower mosaic virus. These all are the normally the type of the plant viruses. Now the third type of the viruses
are the bacteriophage virus. Bacteriophage virus is that type of the virus which infects the bacterial cell. That is known as the bacteriophage virus. It's mean what, students? Think about it. Yes, वायरस एनिमल को भी डिजीज कॉज कर देता है, वायरस प्लांट को भी डिजीज कॉज कर देता है. इवन वायरस वेरी माइन्यूट इन देयर साइज, वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करता है, उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है. राइट स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ द बैक्टीरियाफेजेस सच एज द डीएनए वायरस, MV11 वायरस, आरएनए वायरस और लैम्डाफेज वायरस. ठीक है, और T4 वायरस भी इसको कहते हैं हम. सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ द बैक्टीरियाफेज वायरसेस. ओके गर्ल्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी. वायरस के एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. Viruses are generally classified on the basis of the morphology and the nucleic acid they contain. For example, on the basis of the morphology, viruses are classified into the three main categories. Rod viruses. What does it mean? Rod-shaped viruses. Rod-shaped viruses are able to cause the disease in the plants. They are normally the TMV, tobacco mosaic viruses. Example is. Second is the spherical viruses, spherical shaped viruses which are round in shape. They are causing the diseases in the animals like the polio virus, HIV virus, hepatitis virus, influenza virus. Right? Now the third type of the virus is the tadpole virus. Tadpole virus, which are actually the tetrahedral in their shape, and these are normally the bacteriophage viruses which are able to causing the disease in the bacterial cell. Okay girls, वायरस के कितनी टाइप्स हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कुछ वायरस रोड शेप के होते हैं जो कि प्लांट वायरसेस नॉर्मली होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट में डिजीज कॉज कर देते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास टोबैको मोज़ेइक वायरस. कुछ वायरसेस स्फेरिकल होते हैं शेप में और क्या करते हैं, ये एनिमल में डिजीज कॉज कर देते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास पोलियो वायरस, एड्स वायरस, HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. कुछ वायरसेस टेडपोल इन शेप होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल लुक देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, उसके अंदर भी डिजीज कॉज कर देते हैं. सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस. ओके, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कंपोज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द कैप्सिड. वायरस किससे मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड से मिलकर बना होता है. अगर जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग से कैप्सिड को रिमूव कर दिया जाए तो सिर्फ वायरस के स्ट्रक्चर में क्या बाकी बचता है, सिर्फ और सिर्फ द सिंपली जेनेटिक मटेरियल. राइट, सो वायरॉइड्स होते क्या है, दे आर द सिंपली द जेनेटिक मटेरियल. Which type of the genetic material? Single stranded circular RNA particles, जो कि बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर से भी ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं. राइट स्टूडेंट्स, वायरस में और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है कि वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर तो कंप्लीट नहीं होता बिकॉज वो सेल तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, कैप्सिड मौजूद है, उसके पास टेल फाइबर्स हैं. राइट, सिर्फ उसके पास ये चीजें मौजूद हैं. जबकि वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये उससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट हैं. इनके पास ना कैप्सिड है, ना ही तो इनके पास टेल फाइबर्स हैं. इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA पार्टिकल होता है. राइट, सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वायरॉइड्स? Viroids are the plant's pathogen which are smallest single-stranded circular RNA particles that are much simpler than a virus. They do not have a capsid or the outer envelope, but as with the viruses can reproduce only within the host cell. राइट, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है व्हेन इट इंटर इनटू द होस्ट सेल. जब ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है. वायरॉइड्स डू नॉट हाउ एवर मैन्युफैक्चर एनी प्रोटीन.
they produce only a single specific RNA molecule. Viroids consist of the small necked single stranded RNA. They cause the diseases in the plants. आपने याद रखना है वायरॉइड्स में और वायरस का डिफरेंस, और ये भी याद रखना है कि वायरॉइड्स नॉर्मली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं. दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. Yes, they are single-stranded RNA particles which are able to cause the disease in the plants. Right, students? Now the prions. What are the prions? Prions are basically the infectious proteins. जैसे अभी हमने कहा कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है, और प्रोटीन कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. राइट स्टूडेंट्स? तो अगर जेनेटिक मटेरियल रिमूव कर दिया जाए वायरस के स्ट्रक्चर में से, तो रिमेनिंग क्या बाकी बचता है, प्रोटीनेशियस कैप्सिड. सो प्रायोन्स क्या होते हैं, दे आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. दे आर स्मॉलर देन द वायरसेस दैट कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड, नाइदर DNA और नोर RNA. इनके पास ना ही तो DNA होता है ना ही RNA होता है, इनके पास सिंपली कैप्सिड होता है. ठीक है, समझे कि वायरस को अगर हम डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड कर दें, उसके कैप्सिड को अलग कर दें, उसके न्यूक्लिक एसिड को अलग कर दें, तो जो कैप्सिड है वो प्रायोन्स कहलाता है, और जिसका न्यूक्लिक एसिड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA है वो वायरॉइड्स कहलाता है. इज दैट क्लियर? ओके. प्रायोन्स आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट कॉज द transmissible spongiform encephalitis. Prions are extremely resistant to the chemical heat and the radiations. Right students? Prions and the viroids का डिफरेंस समझ में आ गया. Viroids क्या होते हैं? They are the simplest single-stranded circular RNA particles which don't have any capsid, but they are causing the disease in the plants. And what are the prions? Prions are the proteinaceous capsid which do not have any nucleic acid. They causing the disease in the animals like the encephalitis, right? And they are extremely resistant to chemicals, heat and the radiations. Is that clear? Okay, dear students, as we discuss about the bacteriophage viruses are those viruses which are able to causing the disease in the bacterial cell. वो तमाम वायरसेस जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, उसकी तमाम तर जेनेटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तमाम होल्ड करने के बाद अपने ही रेप्लिकेट्स बैक्टीरिया की बॉडी में फॉर्म करते हैं, वो वायरसेस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर structure of the bacteriophage virus. Here you can see the tetrahedral structure of the virus, which is polyhedral in shape and showing the tetrahedral structure. Below the tetrahedral structure, collar and the sheet, right? And the tail fibers are present here, right? And in the center, base plate is also present, which having some pins, right? This base plate is the hexagonal in shape. कैसी होती है, हेक्सागोनल इन शेप होती है, और इसका जो टोटल पॉलीहेड्रल हेड है वो कैसा है, वो बिल्कुल ही टेट्राहेड्रल इन शेप है, टेट्राहेड्रल इन शेप है. और इनसाइड दिस हेड जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कैप्सिड से कवर्ड है, फिर उसके बाद कॉलर है, फिर शीट है, और देन टेल फाइबर्स हैं, और हेक्सागोनल बेस है जिसमें पिंस लगी होती हैं. जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो क्या करता है, ये पिंस उसके अंदर होल्ड हो जाती हैं और वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल के अंदर इन कर देता है. जैसे ही उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में इंटर हो जाता है तो बाहर बैक्टीरिया की बॉडी के सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड रह जाता है, और जेनेटिक मटेरियल कहाँ चला जाता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाता है. राइट. सो ये वहां पर दो डिफरेंट तरह से अपनी लाइफ साइकिल को प्रोसीड करता है. राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज. ओके गर्ल्स. लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज. The virus that infect the bacteria, mostly the E. coli, is known as the bacteriophage viruses.
They are tadpole or the tetrahedral in shape. Bacteria can produce by the two alternative mechanisms. First one is the lytic cycle. Second one is the lysogenic cycle. Right, students? You can see in the picture that first one is the lytic cycle, in which virus attack on the bacteria body and kill the bacteria body and form its replicates. Whereas in the lysogenic cycle, bacterial genetic material and the viral genetic material, they form an association between both the genetic material in which both are beneficial. Right, students? They are forming the association in which both are incorporated, and this condition is actually in the unfavorable condition. When condition become favorable, then again bacteriophage virus, genetic material of the bacteriophage virus become active and cause the infection in the bacteria and attack on the bacterial cell and forming its replicates. Right? And then again lytic cycle will be started. Okay, now we have to study both the life cycles in detail. Okay girls, now first of all we have to discuss the lytic cycle of the bacteriophage. Right, students? Now what happened in the lytic cycle of the bacteriophage? In the bacteriophage lytic cycle, bacteriophage attack on the bacteria E. coli and control all the activities and eventually end in the death of the host cell. That is known as the lytic cycle. Right? There are the few steps, and these steps you can see in the picture that stepwise process. Right, students? You have to focus on this diagram. First of all, bacteriophage virus attack on the bacterial cell. Right, students? And its tail fiber invade in the bacterial cell and its basal plate attack on the bacterial cell and transferring its genetic material. Right? Here you can see in the step number 2, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, जो कि फेज डीएनए है, वो कहाँ पे एंटर हो गया है? वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो गया है, और जिसने एंटर होते ही होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को पीसेस में ब्रेक कर दिया. राइट स्टूडेंट्स? देन बैक्टीरिया सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तमाम तरह एक्टिविटीज को बैक्टीरियोफेज का फेज डीएनए कंट्रोल कर लेता है और क्या करता है? अपने ही रेप्लिकेट्स बनाना स्टार्ट कर देता है. राइट? क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ द वायरल जीनोम एंड द प्रोटीन. उसका जो प्रोटीन कैप्सिड्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाता है. गर्ल्स, डू यू रिमेम्बर दैट जो प्रोटीन कैप्सिड है वो कैसे बना था? थिंक अबाउट इट. यस स्टूडेंट्स, प्रोटीन कैप्सिड इज मेड अप ऑफ बाय द कैप्सोमर्स. राइट? किससे मिलकर बना है? कैप्सोमर्स से यूनिट्स होते हैं ये प्रोटीन के, सब यूनिट्स इनसे मिलकर बना है. तो बैक्टीरिया की बॉडी में कैप्सोमर्स से प्रोटीन कैप्सिड बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन कैप्सिड बन जाता है. जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरियल सेल. राइट स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा होता है इनसाइड द सेल वॉल, वो तमाम तरह एक्टिविटीज को जेनेटिक मटेरियल वायरस का कंट्रोल कर लेता है, फेज डीएनए कंट्रोल कर लेता है और अपने ही रेप्लिकेट्स बनाता है, प्रोटीन कैप्सिड्स बनाता है, टेल फाइबर्स बनाता है. राइट? देन इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इन सब की असेंबली हो जाती है, सब मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज वायरस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. असेंबली में होता क्या क्या है? असेंबली में हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट टेल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. टेल्स बनती हैं, बेसल प्लेट बनती है, कॉलर बनता है, हेड बनता है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल कवर्ड है कैप्सिड से. इन सब की असेंबली होती है और फेज असेंबली कंप्लीट हो जाती है और क्या बना देती है? बैक्टीरियोफेज बना देती है. अब ये बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर बन चुके हैं. Right? When they become the mature, they exert the pressure on the outermost wall of the बैक्टीरिया की outermost wall के ऊपर प्रेशर exert करते हैं, जिसकी वजह से तमाम तर डोटर फेजेस इसकी वॉल से बाहर आ जाते हैं. राइट? इन द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइटिक साइकिल द डोटर फेजेस रिलीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम्स. राइट? which digest the bacterial cell wall.
Due to the osmosis, bacteria cells swell and finally burst, releasing 100 to 200 daughter phages particles. इज दैट क्लियर? तमाम तर डॉटर फेजेस बाहर आ जाते हैं. अब हर एक डॉटर फेज के पास दो तरह का जेनेटिक मटेरियल, एक तो बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल की उसके पास प्रॉपर्टीज भी हैं, और कौन सी है, इसके अपने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी हैं. नाउ दिस virus is called the bacteriophage virus. Now this bacteriophage virus is able to cause the disease in another bacteria. Is that clear? Okay. Now the second phase is the lysogenic cycle. ये लाइसोजेनिक साइकिल नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती बैक्टीरियोफेज वायरस के, तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलकर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहता है. राइट? सो व्हाट इज द लाइसोजेनिक साइकिल? द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन विच द वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल इज नोन एज द लाइसोजेनिक साइकिल. राइट स्टूडेंट्स? वो क्या करता है कि बैक्टीरिया सेल को डैमेज कॉज नहीं करता, बल्कि उसके साथ कॉपरेट करता है और खुद भी वहां से बेनिफिट लेता है और बैक्टीरिया के लिए भी बेनिफिशियल होता है, और वहां पे क्या करता है, अपने ही रेप्लिकेट्स को फॉर्म करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट स्टूडेंट्स? Viruses that are capable of using both modes of the reproduction within the bacterium are called the temperate viruses. वो तमाम वायरसेस जो कि दोनों तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, क्या कहलाते हैं? टेम्परेट वायरसेस कहलाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक साइकिल में होता क्या है? इन दिस साइकिल इन्फेक्शन ऑफ द ई कोलाई सेल बिगिन व्हेन द फेज बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड इंजेक्ट्स डीएनए. राइट? क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया सेल के साथ आके ज्वाइंट हो जाता है और अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है. जैसे ही वो अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, फेज डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिल जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन होती है. और ये रिकॉम्बिनेशन कैसी होती है? दो तरह के जेनेटिक मटेरियल, एक तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है और दूसरा वायरल जेनेटिक मटेरियल. तो क्या कहलाती है? ये कहलाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन अ स्पेसिफिक साइट ऑन द होस्ट सेल. राइट? नाउ इट इज नोन एज द प्रोफेज साइकिल. द फेज जीनोम इज मोस्टली साइलेंट विद इन द बैक्टीरियम. बिल्कुल साइलेंट होता है बिकॉज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. ये जो कंडीशंस होती हैं जब लाइसोजेनिक साइकिल कंटिन्यू हो रही होती है, ये कंडीशंस बैक्टीरियोफेज वायरस के लिए फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में तो लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है. जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब ये लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं. राइट स्टूडेंट्स? व्हेन ई कोलाई सेल्स प्रिपेयर टू डिवाइड, इट रेप्लिकेट्स द फेज डीएनए आल्सो एंड पासेस द वायरल कॉपीज टू द डॉटर सेल्स. जब बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होने लगता है तो साथ में वायरल जेनेटिक मटेरियल भी वहां पर होता है. दोनों इनकॉर्पोरेटेड करते हैं और दोनों मिलकर ही रेप्लिकेट होना स्टार्ट करते हैं, और रेप्लिकेट होने के बाद इनके जो रेप्लिका बन जाते हैं वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं. इस तरीके से यह मैकेनिज्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन चलता रहता है. लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर फेज डीएनए ने क्या कर देना है? फौरन से लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर देना. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट व्हेन द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल कॉर्पोरेटेड विद द फेज डीएनए, then they are form a association in which both are beneficial. right? तो बैक्टीरिया क्या करता है? वहीं पर अपने रेप्लिकेट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं. इसके रेप्लिकेट्स बनते हैं और हर रेप्लिकेट अलग अलग हो जाते हैं, डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और हर डॉटर सेल के पास एबिलिटी होती है कि दोनों तरह की जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के सेल के अंदर रहते हुए अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं. लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, क्या करता है वायरल जेनेटिक मटेरियल? वो फेज डीएनए फौरन से एक्टिव हो जाता है और क्या करता है? बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है, उसको किल कर देता है और अपने डॉटर फेजेस बनाकर लाइटिक साइकिल को प्रोसीड आउट करते हैं. राइट? सो दिस इज अबाउट द लाइसोजेनिक एंड द लाइटिक साइकिल. राइट? लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में क्या फर्क है कि लाइटिक साइकिल में जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया सेल ई कोलाई के ऊपर अटैक करता है तो फौरन उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के बाद उसको उसकी डेथ कॉज हो जाती है, उसको खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं.
जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का और वायरल का दोनों जेनेटिक मटेरियल मिलकर रेप्लिकेट करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जब जैसे ये अटैक करता है तो दोनों इनकॉर्पोरेटेड करते हुए दोनों का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाता है और वो होस्ट सेल को डैमेज कॉज नहीं करता और क्या करता है, अपने ही रेप्लिकेट्स बना देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज यूजुअली एन environmental trigger such as the radiations or the presence of the certain chemicals that convert the virus from the lysogenic to the lytic mode। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम लाइसोजेनिक टू द लाइटिक मोड। फिर जो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरियल सेल को किल कर देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ गर्ल्स, दिस इज होल अबाउट द वायरसेस। वायरसेस के बारे में हमने क्या क्या स्टडी किया कि वायरसेस होते क्या हैं, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन होती है और इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। राइट स्टूडेंट्स, सो वायरसेस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि वायरसेस क्या है। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि ए सेलुलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल टेल फाइबर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्लिगेट एंड द फैकल्टेटिव पैरासाइट। Obligate parasites are those parasites which have to need the host to become the living thing, right? Whereas facultative parasites are those parasites which do not need any host. They can live, they can survive if host is present or if host is not present. Is that clear to all of you? ओके, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को स्टडी किया। हमने उसके शेप के हिसाब से, उसके होस्ट के हिसाब से और उसके जेनेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जब हमने जेनेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से वायरस को स्टडी किया तो हमें पता चला कि वायरस के पास दो तरह का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। जब हमने वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज के मुताबिक स्टडी किया तो हमें पता चला कि इसके 3 होस्ट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं और इसके बैक्टीरिया होस्ट हो सकता है। फिर हमने इसको इसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से स्टडी किया तो हमें पता चला कि इसके 3 तरह के शेप्स की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि ये सर्कुलर हो सकता है, दूसरा ये टेडपोल हो सकता है और तीसरा ये रोड शेप हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, फिर हमने उसके बाद बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर स्टडी किया, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को स्टडी किया और हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज की 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है, लाइटिक लाइफ साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू आस्क मी। विद एनी क्वेरी यू कैन राइट एन ईमेल, you can comment me, or you can text window me, and definitely I will give you the answer as soon as possible. Right, students? So girls, this is all about the today's lecture. If you have any query, you must have to ask for me. Thank you so much for listening me. Thank you so much, girls. Have a wonderful day. This is Miss Sabeen Zahoor, plants pathologist.